Good morning, guys. If you are able to see the screen and able to hear my voice, please send yes in the chat box fast. Speed. Y for Y for yes, N for no. पूरा yes टाइप नहीं करना, only Y. And I request all the students, the attendance is taken by the software. It is automatic attendance. If your name is other than your name and surname, if you are keeping any name other than lecture, I don't have any issue. It's your personal thing. But for the lecture we want your proper name, so that attendance, जब attendance का recording होता है software के अंदर, the software will record the name which is there at now, at present. When you join that time जो नाम था वही नाम से attendance होगा. तो अगर अपने लिस्ट के अलावा कोई नाम रहेगा, I don't know that person will be marked absent. From day one I am telling everybody to keep your name and surname as your account name whenever you attend any teacher's lecture, any subject lecture. Do follow this rule. It will be beneficial for everybody. Your attendance are getting marked every day, whatever lectures you are attending. It's not like that some teachers are marking and some teachers are not marking. Some teachers do record your lecture, and while recording they just scroll the screen, and in that scrolling whatever name comes they mark them present. Okay, I am using software. Some people call out the names. Here in my mobile I don't find any, in my laptop I don't find any audio issue. So if you are finding issue, leave and join again. Issue comes to you before that I come to know that screen is blur, screen is not moving, or voice is not good. I am using all the types of softwares. So I request you, if issue is there, I will personally ask you that the voice is not good, so please confirm, or the screen is not good, please confirm, like that. Okay, we had introduction lecture. Am I right or wrong? हमारा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ है. यस और नो टाइप करना है बस. यस रहेगा तो वाई, नो रहेगा तो एन. स्पीड अप. As I can see some names, so I know that it's been done. Very good. So let's start with our syllabus. The first topic which I am going to start, as I have started it in the B division also, the topic name is surprise. Fine. So let's guess some things. Okay. क्या आप लोग वेदर रिपोर्ट देखते हो? Do you know the weather report? Yes or no? Don't type complete YES, just Y. नो के लिए N. Yes. तो मुझे बताओ, कभी आपने वेदर रिपोर्ट देखा है? बाहर बारिश चल रही है और अंदर बोला जा रहा है कि हाँ अभी बारिश ही होगी, ऐसा कभी देखा? कभी देखा है ऐसा कि बाहर बारिश चल रही है और रिपोर्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है अभी बारिश ही होगी? नहीं, कभी नहीं देखते. सुमन इज राइट, कभी नहीं. बराबर. अक्षता आल्सो राइट. अभी बारिश होगी ये इमीडिएटली नहीं बोल सकते. तो क्या किया जाता है अगले दिन, जैसे कि आज 11 तारीख है, कल 12 है, तो 12 तारीख को जो वेदर रहेगा सनी रहेगा. जैसे अभी फ़िलहाल तो सनी एनवायरनमेंट है. सनी मतलब गर्मी ज़्यादा रहेगी, धूप रहेगी. तो कल का जो वेदर का रिपोर्ट है वो आज बताया जाएगा कि कल ऐसा हो सकता है. वो भी होगी ऐसा नहीं, बारिश होगी, कल गर्मी रहेगी ऐसे नहीं. गर्मी हो सकती है, बारिश हो सकती है, क्योंकि नेचर अपने हाथ में नहीं है. जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं उसके बारे में आप क्या करते हो? प्रोबेबिलिटी की बात करते हो. आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम आपने ऐसा दिया कि कुछ क्वेश्चन सही है कुछ क्वेश्चन गलत है, तो आप क्या कहते हो? शायद ये सब्जेक्ट में मैं पास हो सकता हूँ. जो बच्चे ने अच्छे से दिया तो वो श्योरली बोलता है कि हाँ मैं होऊंगा, लेकिन ये उसके बारे में बात चल रही है जो बोलता है कि शायद मैं पास हो सकता हूँ. कभी कभी ऐसे भी होता है, लेक्चर अटेंड करते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर हमारे इधर थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है या फिर नेटवर्क का इशू, शायद आज हमारा लाइट चला जाए या फिर शायद हमारा इंटरनेट चला जाए. द वर्ड शायद कैन बी प्रोबेबली, ऐसा हो सकता है. देयर कैन बी अ रेन टुमारो, देयर इज अ रेन टुमारो इज probability. Oh no, before probability there come some things, and that is what is called as permutation and combination. The name of the topic is permutation and combination. These two things are related to chances.
दे आर रिलेटेड टू चांसेस, क्या हो सकता है, चांसेस, लेकिन इसका यूज क्या है, टू फाइंड वेज, वेज कितने तरीके हो सकते हैं, कॉइन को टॉस किया, क्या क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, जब गिरेगा फाइनली तब पता चलेगा हेड आया या टेल आया, लेकिन तब तक हमें इतना ही पता है एक तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। सो दिस इज चांसेस, और वो कितने वेज के वो ढूंढने का मेथड है, मेथड टू फाइंड वेज इज कॉल्ड एज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो परम्यूटेशन है ना, दिस इट इज रिलेटेड टू अरेंजमेंट्स। ये बहुत सिंसियर बंदा है, वेरी सिंसियर, वेरी क्लेवर, मस्ती नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एकदम डिसिप्लिन है, आर्मी वाला है। एंड कॉम्बिनेशन ना अपना रैंडम है, ठीक है, और इसको हम इरेगुलर भी कहते हैं। ये वो है ना जिसको कभी कभार लेक्चर अटेंड करना अच्छा लगता है, कभी कभार होमवर्क करना अच्छा लगता है, बट ये परम्यूटेशन में बहुत सिंसियर है, हर दिन लेक्चर अटेंड करेगा, हर दिन होमवर्क करेगा, हर दिन असाइनमेंट करेगा, हर बार डाउट पूछेगा। सो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों स्टूडेंट्स ही, ये दोनों प्रोबेबिलिटी के तरीके ही। चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी, चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी, तो ये चांसेस फाइंड आउट करने का जो तरीके, कितने वेज के चांसेस हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लूँ, मेथड टू फाइंड वेज, तो अरेंजिंग स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, ठीक है। या फिर अगर आपको रैंडम चाहिए, सिलेक्टिंग एक्स स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बट मैंने एक्स लिखा, स्टूडेंट्स फ्रॉम अ क्लास, कोई क्लास में से सिलेक्ट करना है, तो अरेंजिंग आया तो ये हमेशा परम्यूटेशन रहेगा। सिलेक्शन वगैरह आया जिधर अरेंजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, रैंडमनेस है, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा। सो दिस टू आर द एग्जांपल्स, अरेंजिंग स्टूडेंट्स इन अ रो, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मेथड टू फाइंड वेज, सिलेक्टिंग एक्स स्टूडेंट्स फ्रॉम अ क्लास, 60 बच्चों में से 10 बच्चे सिलेक्ट करना है, तो कौन 10 बच्चे सिलेक्ट करना है, उसका जो तरीका है, दैट इज ऑल्सो मेथड टू फाइंड वेज, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दैट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाउ। Okay, this permutation is related to discipline, this permutation is related to discipline, ठीक। तो ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये परम्यूटेशन को जो बेसिक्स चाहिए, जैसे कि खाना बनाते हो तो खाना बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वैसे ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खाना है, इसका कच्चा माल क्या है, तो इसका कच्चा माल ये है, समथिंग कॉल्ड एज फैक्टोरियल। होता क्या है तो मैं बताता हूँ क्या होता है, क्या करूँगा मैं बताएं, 0 से 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1, फिर 1 के बाद आता है 2 क्रॉस 1, फिर आता है 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ठीक है, फिर आता है 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, फिर आता है 5, 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या लिखा है मैंने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, लेकिन किसी पता उल्टा, उल्टा लिखा है, उल्टे नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 का 1 ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 इंटू 3 इज 6, अरे मतलब ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर ना ये 2 को 3 से किया, अभी 3 2 ज़ा 6 इंटू 1, तो 6 ऑलरेडी, उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो 6 4 ज़ा 24, 24 को 5 से करोगे तो 120, 120 को 6 से करोगे तो 720, 720 को 7 से करोगे तो 5040 करके देखना आता है, 5040 को 8 से करोगे तो 40320, 40320 को 9 से करोगे तो 362880, 362880, एंड इसको 10 से करो तो सिंपली एक 0 ऐड करो तो 3628800। ये मल्टीप्लिकेशन है, करो ना, 6 5 ज़ा 30, 34 ज़ा 120, 1 2 20, 3 ज़ा 360, 362 ज़ा 720, 1 का तो सिर्फ नाम के लिए लिखा है हमने, राइट। मैंने क्या किया, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को, मल्टीप्लिकेशन किसका, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का, कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के पीछे एक जो आता है,
10 के बाद 9, 9 के बाद 8, या फिर उल्टा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, उनका मल्टीप्लिकेशन मैंने करके इसको हम फैक्टोरियल करते हैं। तो दिखाते कैसे, अभी 10 का है ना तो 10 फैक्टोरियल, 9 का है 9 फैक्टोरियल, 8 का है 8 फैक्टोरियल, 7 का है 7 फैक्टोरियल, 6 का है 6 फैक्टोरियल, 5 का है 5 फैक्टोरियल, 4 का है तो 4 फैक्टोरियल, 3 का है तो 3 फैक्टोरियल, 2 का है तो 2 फैक्टोरियल, 1 का है तो 1 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे कहते हैं पता है, 1 फैक्टोरियल का आंसर इज 1, 2 फैक्टोरियल का आंसर इज 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू इज 6। लिखते कैसे, अगर किसी ने 3 फैक्टोरियल लिखा तो 3, 2, 1, उससे एक एक कम करते जाने का। 4 फैक्टोरियल लिखा 4, 3, 2, 1, 4 से एक एक कम करते जाते हैं। फिर 5 का लिखा 5, 4, 3, 2, 1। अगर मुझे n फैक्टोरियल किसी ने बोला निकालो n फैक्टोरियल निकालो, तो मैं क्या करूँगा पता है, n से एक कम कर दूंगा, n-1। देखो ना 6 फैक्टोरियल तो 6 लिखा, पहले 6 लिखूंगा, फिर 6 के बाद 5 आया तो 6 में से एक कम किया, फिर 6 के बाद 4 आया तो 6 में से कितना कम किया, 2 कम किया, 6 में से कितना कम किया, 2 कम किया, फिर 4 के बाद 3 आया तो 6 में से कितना कम किया, 3 कम किया। तो मैंने क्या किया, n उसमें से एक कम, उसमें से 2 कम, उसमें से 3 कम, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। दिस इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल, दिस इज कॉल्ड एज n फैक्टोरियल। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सर यहाँ पे आपने 1 लिखा है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, हमेशा याद रखना। ये क्यों मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतना जानो कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, 1 फैक्टोरियल का भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं 1 तक क्यों जाता हूँ, उसका रीज़न है। यहाँ पे 1 लिखा है, 1 का वैल्यू इज़ 1। 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 है, तो 2 1 2 वही आ रहा है। 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2 फैक्टोरियल, क्यों, 2 फैक्टोरियल इज 3 × 2 × 1, 2 × 1 तो 2 फैक्टोरियल, तो मैं 3 को 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, 3 × 2 फैक्टोरियल। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 × 3 to 1 इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल, तो उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 3 फैक्टोरियल। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, 3 एंड फिर 2 फैक्टोरियल, चलेगा ना, 4, 3 हो गया, 2 × 1, 2 × 1 इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल। सर ये 10 के बारे में तो बताओ ना, 10 को मैं 10 × 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 फैक्टोरियल क्या है, 10 के बाद क्या है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो 9 फैक्टोरियल क्या है, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1। बस उसकी जगह पे, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 9 फैक्टोरियल लिख दिया, खत्म। तो लिख तो वही रहा हूँ बट छोटा करके लिखा, इतना बड़ा हमेशा थोड़ी लिखेंगे। सर इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। मैं इधर 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही लिख रहा हूँ, तो इसके लिए 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं, जहाँ तक जाके आपको रुकना है वहाँ पे जाके फैक्टोरियल देना है, खत्म। मतलब अगर किसी ने बोला 11 फैक्टोरियल क्या है, मैं 11 × 10 फैक्टोरियल इधर ही रुक गया, फैक्टोरियल डाल दिया। व्हाट हैपन निदेश, मैंने 11 फैक्टोरियल लिखा तो क्या किया, 11 × 10 तक गया, 10 को फैक्टोरियल लगा दिया। अगर कोई बोलेगा सर 6 तक जाओ, तो 11, 10, 9, 8, 7, 6, इसके आगे नहीं जाना, फैक्टोरियल लिख दो, खत्म। जहाँ पे जाके रुकना, यहाँ पे 1 तक रुकते तो इसके लिए 1 फैक्टोरियल नहीं लिखते, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, ठीक है, इसके लिए। तो ये आपका होता है फैक्टोरियल, जहाँ पे जाना वहाँ पे रुकना। सर अभी n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, n, मुझे n-1 तक जाना है, फैक्टोरियल लिख दिया। मुझे n-2 तक जाना है, तो n-1, n-2 फैक्टोरियल। किसी का भी तो भी माइक अनम्यूट है, साहिल भोसले प्लीज़ म्यूट योर माइक, थैंक यू। तो जहाँ तक जाना है वहाँ पे जाके क्या लगा देना है, फैक्टोरियल का वैल्यू लगा देना है, दैट्स इट, ठीक। अभी आप सभी लोग मुझे बताओ 11 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा, कैलकुलेट इट एंड टेल मी फर्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 11 फैक्टोरियल। क्या करना है, 11 × 10 फैक्टोरियल का वैल्यू, 10 फैक्टोरियल का वैल्यू तो कौन है, 3628800, ठीक। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 11 से। चलो जल्दी बताओ, टेल मी द वैल्यू ऑफ 11 फैक्टोरियल। टाइप करो, अनम्यूट मत करो। जब मैंने क्या बोला है, जब तक मैं ना बोलूँ कोई अनम्यूट नहीं करेगा, क्योंकि आपका खुद का डेटा जाएगा, चैटिंग से कम डेटा जाता है, या फिर वीडियो ऑडियो ऑन नहीं होता है ना, तो कम डेटा यूज़ होता है आपके लेवल पे। 1 1 1 1 नहीं नहीं नहीं, चलो कोई एक जन बताओ तो मैं आगे बढ़ूँ जल्दी। 68 स्टूडेंट्स आर देयर, तो कोई एक जन आंसर बता दो। 3991680, ओके चेक करते हैं। अभी आप लोगों ने क्या किया होगा,
3628800 को 11 से कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई किया होगा या मे बी खुद से मल्टीप्लाई करके लिखा होगा। अभी देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर मुझे किसी भी नंबर को मतलब 5, बेटा वीडियो का कोई इशू नहीं चल रहा है, वीडियो इज क्लियर। 523 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो, आप कैसे करते हो? 11 3 ज़ा 33, 3 कैरी, 11 2 ज़ा, ऐसे ना 3, 11 3 ज़ा 33, 3 कैरी, 11 2 ज़ा 22 प्लस 3 25, 2 कैरी, 11 5 ज़ा 55 प्लस 2 57, राइट? ऐसे आप लिखते हो। इसका शॉर्टकट मेथड है, क्या करने का बताएं? इस वाले 3 को ऐसे ही लिखो, फिर इस 3 को इस 2 के साथ ऐड करो, 3 प्लस 2 5, ओके। फिर ये 2 को 5 के साथ ऐड करो, 2 प्लस 5 7, और ये 5 को एज इट इज़ लिखो 5, 5 7 5 3, सीधा आंसर आ गया। सर और एक दो एग्जांपल बताओ। 7 8 6 मल्टीप्लाई विद 11, अभी इसका आप वैल्यू निकाल सकते हो, मैं सीधा आंसर बताता हूँ। 6 को एज इट इज़ लिखना है। 6 प्लस 8 कितना होता है? 14, 1 4, तो उसमें से सिर्फ 4 लिखूंगा, 1 हो जाएगा कैरी, तो इसके पास जब एडिशन होगा तो प्लस 1 भी आएगा। 8 और 7 कितना होता है? 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16, कैरी में कितना रहेगा? और 1, 7 और 1 कितना होगा? 8, इसका आंसर आएगा 8646। सर इसके बारे में कैसे होगा? तो इसमें 3628800 इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 11 फैक्टोरियल निकालना है। तो 0 को एज इट इज़ लिखा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 8 16, कैरी 1, 8 प्लस 2 10 और 1 कैरी का 11, कैरी 1, 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 3 9 और 3 एज इट इज़। आंसर इज 3991680, 3991680 शॉर्टकट। तो क्या करना है? फर्स्ट डिजिट, फिर एडिशन करना है, कैरी वाला पार्ट आएगा तो यूनिट डिजिट वाला लिखो, कैरी आगे जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। फास्ट, यस के लिए वाई, नो के लिए एन। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट जो हमें पढ़ना है वो कुछ मिसकंसेप्शन है। मतलब क्या? अगर किसी ने लिखा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो आप क्या लिखोगे? 5 4 ज़ा 20 फैक्टोरियल, लेकिन ये कभी भी सही नहीं है, कभी भी सही नहीं है। क्यों? 5 फैक्टोरियल होता है 120, राइट? एंड 4 फैक्टोरियल होता है 24। 24 इंटू 120 करो, 24 0 ज़ा 0, 24 2 ज़ा 48, 4 कैरी, 24 1 ज़ा 24 प्लस 4 28। मुझे बताओ 20 फैक्टोरियल, अभी आप सिंपली ये देखो इसका वैल्यू कितना आया? 5 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल का 2880, राइट? 2880। 7 फैक्टोरियल का ही वैल्यू 5040 है, तो 20 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना बड़ा रहेगा? सोचो, 11 फैक्टोरियल का वैल्यू इतना बड़ा 3628800, और ये 2880, कहीं पे मैच हो रहा है क्या? तो इसके लिए 5 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल कभी भी 5 4 ज़ा 20 लिखने का नहीं, उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू वो लिखो और फिर आंसर आएगा। सो दिस इज राइट वन, ठीक, दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट, सेकेंड, 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को कभी भी एडिशन के बाद 9 फैक्टोरियल नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि 9 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है? 3628880 है। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120, 4 फैक्टोरियल का 24, 120 प्लस 24 होता है 144। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, इसके लिए ये और ये इक्वल नहीं होगा, ये राइट है। दोनों का वैल्यू लिख के ऐड करना है। सेम अप्लाइज टू सब्ट्रैक्शन, तो ये प्लस माइनस रहेगा, तो 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल को कभी भी 1 फैक्टोरियल नहीं लिखना, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है। 5 फैक्टोरियल इज 120 माइनस 24, 120 माइनस 24 होता है 96, और ये दोनों कभी इक्वल नहीं है। तो दिस इज राइट वन, दिस इज रॉन्ग वे। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं करना है। फोर्थ वन, मल्टीप्लिकेशन हुआ, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ। अभी डिवीजन, डिवीजन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसको 2 फैक्टोरियल लिखने का नहीं। क्यों? 4 फैक्टोरियल का वैल्यू है 24, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू है 2, 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, तो इसका आंसर 12 आता है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू का आंसर 2 आता है, जो भी कभी मैच होता नहीं। तो ये सही तरीका है। वैल्यू लिखो, फैक्टोरियल का जो वैल्यूज़ आते हैं वो लिखो। वैल्यूज़ मतलब क्या? ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन करके निकाले ना, दिस आर द वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ लिखो और फिर उनको सॉल्व करो। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने का दूसरा एक तरीका होता है, मतलब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, आप वैल्यू लिखोगे 5040, राइट? नहीं सॉरी, 40320 है। यस, इट इज़ 40320 एंड 5 फैक्टोरियल इज 120। कैंसिल,
12 वन ज़ा 12 फोर ज़ा 36, फिर 4 बचेगा, 12 फोर ज़ा 36, फिर 7 बचेगा, राइट। 7 12 6 ज़ा, तो इसका आंसर आएगा 446। इसको आप और तरीके से लिख सकते हो, कैसे बताएं? 8 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 8 फैक्टोरियल को 8 7 6 5 पे जाके रुक गया, तो 5 को लगा दो फुल स्टॉप, और नीचे 5 फैक्टोरियल था, दोनों सेम है ना, तो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। नाउ 6 7 ज़ा 42, 42 मल्टीप्लाई बाई 8, अरे बाप रे, 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 8 4 ज़ा 32, 42 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33, तो ये 336 आ रहा है। यहाँ पे कुछ गलती हो गई फिर हमारी, 12 3 ज़ा 36 था, राइट, और फिर बचा 4, 12 3 ज़ा, राइट है, हमने 12 4 लिखा गलती से, तो इट इज़ 12 3 ज़ा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स देखो कितने लेवल तक ले जा सकती है। तो मुझे यहाँ पे क्या बताना था, वैल्यू डाल के जो आंसर आ रहा है, अगर आप 8 को 5 तक लिखो, 5 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वो आपको सेम आंसर देगा, इट विल गिव यू द सेम आंसर, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल के कुछ कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए, कोई भी बुक में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। अगर स्कूल में कॉलेज में पहले 11 12 में किया होगा तो शायद वहाँ पे रहेंगे, बट अभी डिग्री में कोई नहीं बताएगा आपको ये ऐसा होता है, सीधा रॉन्ग करके छोड़ देंगे, ठीक। अभी यू हैव सम वेज ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो जो हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, जैसे कि ए बी एंड सी, ये 3 लोग हैं, 3 पर्सन्स, ठीक, एंड इनको अरेंज करना है, तो इनको कितने वे से, हाउ मेनी वेज अरेंज किया जा सकता है, हाउ मेनी वेज से, ठीक। तो अगर ये 3 ही है तो इजी है, ए बी बी सी सी, राइट, ए बी बी सी सी, फिर बी सी बी सी, नहीं गलत हुआ, बी सी हुआ, ए बी सी, ए सी बी, फिर बी ए सी, फिर बी सी ए बी एंड सी बी ए, यस, नाउ राइट। कितने तरीके हुए ये, 6 वेज, और ये जो वेज है वो निकालते हैं हम यूजिंग परम्यूटेशन एंड और, सॉरी नॉट एंड, और कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी ये 3 थे तो इजी था, मान लो कल अगर 10 लोग देंगे, 10 पर्सन्स को अरेंज करना है, 10 पर्सन्स को क्या करना है, अरेंज, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं, सो दैट टाइम यू यूज परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक। जब नंबर छोटा है तो इजी है, आराम से 6 निकाल सकते हो, जब नंबर बड़ा है तो इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यूज पी और सी बिकॉज नंबर ऑफ वेज आर लार्ज नंबर, क्योंकि जब 3 थे तो 6 में कन्वर्ट हो गए, या 10 है तो 20 30 25 50 पे भी जाएगा, हमें जो पता नहीं है, शायद 100 तक भी जाए, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये अपना काम क्या करता है, इजी, यूज़ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। वाई टू यूज़ दिस, मैक्स कैलकुलेशन इजी, कैलकुलेशन इजी, ये कैलकुलेशन को इजी करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। गुड मॉर्निंग मैम। तो अभी आप मुझे एक चीज़ बताओ, परम्यूटेशन कब यूज़ करोगे, जो मैंने बताया डिसिप्लिन रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा, तो कॉम्बिनेशन रहेगा, कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे जब रैंडम वाली बात होगी, रैंडमली हमें कुछ सिलेक्ट करना है, या फिर जिसमें इरेगुलरिटी है उसमें हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने जितना आज पढ़ा है, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना, फैक्टोरियल, क्योंकि परम्यूटेशन का फॉर्मूला फैक्टोरियल के ऊपर डिपेंड है, कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला फैक्टोरियल के ऊपर डिपेंड है, और इसके दोनों को अटैच जो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड है, एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल के ऊपर डिपेंड है, तो फैक्टोरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो आज मैंने बताया वो आपको ध्यान रखना है, इसके नोट्स मैं आपको गूगल क्लासरूम क्रिएट होने के बाद भेज दूंगा। आज इसके आगे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज 20 जो डिवीजन है उसमें हमने यहाँ तक ही पढ़ा है, तो आगे पीछे ना हो, कभी शायद कंबाइन करना पड़े या कुछ करना पड़े, तो इसके लिए हम उधर ही रुकेंगे जहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक। सो समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो। Yes, I will send it in the